Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of population interaction. In previous video, that is in part 1, you have learned the very specific concepts of mutualism. And in that video lecture, you have learned the concepts of mutualism, example and many kinds of the correlation and their explanation. That is probably your homework. So with the help of video lecture, you make sure that your explanation are having the concept basis or are having the theoretical basis or practical basis. In previous video lecture, you have also learned the concepts of population interaction. This is all about matter of class 12, and I will also explain you the second part, that is the competition, the second part of population interaction, that is competition, in this video lecture. So let's back over the board and explain the competition. Competition is the second type of population interaction, and they may be interspecific or intraspecific. Now back to the board in order to explain the competition. Actually, in previous video lecture, I have explained you the different kinds of strategies that make the population interaction very specific in the particular habitats. The living organisms that live in a particular habitats may be interdependent, and they both benefit to each others. There will be term the mutualism. Mutualism is the specific terms given for those association in which organisms that live in a particular habitats benefited to each others. They both benefit to each others. There will be the mutualism. In this video lecture, I will define you the competition. Competition is the another way to define the population interaction. Now back to the competition and see the different kinds of strategies that make the competition as a population interaction. Now the competition. First of all, there is need to define the competition. Population interaction between टू डिफरेंट और सिमिलर स्पीसीज. देखो, इंटरेक्शन जो है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, या फिर दो सेम स्पीसीज के भी बीच में हो सकता है. ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन सेम अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकता है, या फिर सेम स्पीसीज के बीच में हो सकता है. इन सच अ मैनर in which population interaction between two different or similar species in which they compete themselves for limiting resource and harmful for each other. ये एक लिमिटिंग रिसोर्स पे डिपेंड है, यानी कि सपोज दैट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है यहाँ पे इफेक्ट डाल रही है. ठीक है, जो के की वैल्यू है यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, यानी के जो है लिमिटेड में है. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो घट नहीं रहा है और वो बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है. और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट घटेंगे. लेकिन पॉपुलेशन दो तरह के अलग अलग पॉपुलेशन एक ही तरह के फूड रिसोर्स पे अगर डिपेंड है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंपटीशन होगा. ठीक है, और वो कंपटीशन लड़ाई झगड़े में होगा तो नुकसान दोनों का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट और सिमिलर स्पीसीज in which they compete themselves for limiting resource and harmful for each others. It means the resource are limited. If the resource are limited, then the two organisms that live for the same kinds of food habitats can compete with themselves, and they are harmful together. They are harmful to each other. For example, suppose that कोई herbivores है जैसे deer. ठीक है, वो क्या खा रहा है, वो खा रहा है घास. ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड बफेलो. ठीक है, वाइल्ड बफेलो भी घास खा रहा है. तो एक ही फूड हैबिटेट पे दोनों डिपेंड हो गए. कौन कौन? डियर भी डिपेंड हो गया और वाइल्ड बफेलो भी. तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा. जहाँ वाइल्ड बफेलो डियर को देखेगा मारेगा, और डियर की तो चांस ही नहीं कि वाइल्ड बफेलो को कुछ कर पाए. लेकिन 8-10 डियर रहेंगे तो वो वाइल्ड बफेलो के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. तो ये जो कंपटीशन है इसमें दोनों को नुकसान होता है. ठीक है, और जब दोनों को नुकसान होगा तो उसको बोलेंगे कंपटीशन. ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है? कंपटीशन. ठीक है, कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक और कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक. ठीक है, कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इट इज़ योर
होमवर्क, इसको लिख लेंगे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन, फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन अमंग फ्लेमिंगो एंड कॉमन फिशेज इन लेक ऑफ साउथ अमेरिका फॉर जू प्लैंक्टन्स। देखो साउथ अमेरिका का जो कॉमन लेक होता है जिसको झील बोलते हैं, उस झील में जो मछलियाँ होती है ना, मछलियाँ वो एक स्पेशल तरह के कीड़े को खाती है जो जू प्लैंक्टन्स है। जू प्लैंक्टन्स सभी कीड़ों को बोलते हैं, लेकिन वो जो कीड़े को खाती है वो स्पेशल होता है, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स को खाती है। लेकिन कभी कभी एक बर्ड जो है उड़ते हुए आती है जो बहुत स्पेशल बर्ड्स होती है, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंगो, ये भी उसी जू प्लैंक्टन्स को खाती है, उसी जू प्लैंक्टन्स पे डिपेंड रहती है जो ये फिश खाती है। तो फिश का अब सीधा सीधा दुश्मनी किससे हो गया, इस फ्लेमिंगो बर्ड से। यानी कि यहाँ पे फ्लेमिंगो, ठीक है, ये जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो और फिश एक दूसरे के लिए कंपटीटर्स हो गए। तो कंपटीटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब फूड हैबिटेट्स एक होता है। जब फूड हैबिटेट्स यहाँ पे एक है, एक ही फूड हैबिटेट्स है, तो कंपटीटर्स फिश और फ्लेमिंगो बर्ड्स हो गए, क्योंकि फिश का, फ्लेमिंगो बर्ड्स का भी फूड हैबिटेट जू प्लैंक्टन्स और फिश का भी जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि अगर फूड रिसोर्स लिमिटेड है, चाहे वो जू प्लैंक्टन्स हो, ग्रास हो, कुछ भी हो, और उसको खाने वाले दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज है, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे, और जब इंटरेक्ट होंगे तो दोनों का नुकसान होगा। ये तो लॉ है, कॉमन सा लॉ, स्टैंडर्ड लॉ है, किसके लिए, एक कंपटीशन का लॉ है, ठीक है, एक कंपटीशन का लॉ है, कॉमन सा लॉ है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन HW मैंने दिया हुआ, किसको एक्सप्लेन करना है, इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। हाउ डू द फ्लेमिंगो बर्ड एंड फिशेज आर कंपटीटर्स विथ ईच अदर्स, लिखेंगे एज वी नो दैट in lake of South America, the fishes and flamingo both depend on the specific zooplanktons that actually feeded by the flamingo and fishes same times together. So both actually compete with themselves and they actually harm to each others. ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए HW मैंने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपटीशन का, ये कंपटीशन, ये आइडियल कंपटीटर्स है। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए कुछ कंडीशन है, ये आपकी हेडिंग भी रहेगी। इफ द रिसोर्स आर हैविंग अबंडेंट इन अमाउंट, इट मीन्स देयर इज नो रोल ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखो कंपटीशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंपटीशन अगर डिफाइन हो, ठीक है, कंपटीशन अगर डिफाइनाइट हो, मतलब ये फिक्स टाइम तक चलता रहे, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्स जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वो अबंडेंट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर ये कोई कंपटीटर्स का जियोग्राफिकल प्लेट्स है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया है और उसमें खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो ये आइडियल है कंपटीटर्स के लिए। पहली कंडीशन कंपटीशंस की यही है कि खाने पीने की चीज़ें यानी नेचुरल रिसोर्स जो है अबंडेंट अमाउंट में हो, यानी कि उस पर इंट्रिंसिक रोल ऑफ नेचुरल इंक्रीज का, वैल्यू ऑफ आर का कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकंड क्या है, बोथ कंपटीटर्स आर डोमिनेट टू ईच अदर्स एंड दे देन शो लॉन्ग टाइम कंपटीशंस। यानी कि जैसे मान लो डियर है और बफेलो है, इसमें बफेलो थोड़ा सा डोमिनेट कर जा रहा है डियर पे, तो डियर को वहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन ये कंपटीटर्स के रूल नहीं है। कंपटीटर्स का रूल है दोनों दमदार हो, डियर भी हो, दूसरा ये पावरफुल डियर हो, दोनों जो है एक साथ रह रहे हो, और दोनों जो है डियर की अलग अलग स्पीसीज हो, दोनों पावरफुल हो और दोनों साथ रह रहे हो, फूड हैबिटेट भी एक हो और फूड हैबिटेट अनलिमिटेड में भी हो, और दोनों में से कोई डोमिनेंट ना हो, ऐसा ना हो कोई सुपीरियर हो, पावरफुल हो, नहीं। तो कंपटीटर्स का आइडियल जो रूल्स है वो पहला रूल्स यही है कि नेचुरल रिसोर्स अबेंडेंट अमाउंट में हो, ज़्यादा हो, और दूसरा रूल्स क्या है, दोनों कंपटीटर्स डोमिनेट करें, उसमें से कोई रिसेसिव कंपटीटर्स ना हो, कोई जो है इसमें से सुपीरियर ना हो, कोई इन्फीरियर ना हो। ऐसा ना हो कि दोनों इन्फीरियर हो, ऐसा ना हो कि एक सुपीरियर हो एक इन्फीरियर हो, नहीं, या तो दोनों सुपीरियर हो या दोनों इन्फीरियर हो, उसमें से दोनों डोमिनेंट हो, दोनों रिसेसिव हो, दोनों
पावरफुल हो तो दोनों पावरफुल हो, दोनों वीक हो तो दोनों वीक हो, तो कंपटीटर्स आइडियल माना जाता है, क्योंकि नुकसान दोनों का करना है ना। मान लो एक पावरफुल, एक जो है पावरफुल नहीं है, तो ये फायदा होगा, ये भाग जाएगा या मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने रूल क्या ऊपर बता दिया, कंपटीटर्स के रूल यही है कि नुकसान दोनों को होता है, ठीक है। तो तभी नुकसान होगा जब जो है दोनों पावरफुल हो, यानी दोनों जो है डोमिनेट करे या फिर दोनों जो है रिसेसिव हो। तो ये कंडीशन है कंपटीटर्स के लिए। सो दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द आइडियल कंपटीशन बिहेवियर। व्हाट हैपेंड इफ, कह रहा है कि अगर क्या होगा जब रिसोर्स जो है लिमिटेड अमाउंट में हो, रिसोर्स क्या हो, कम हो जाए, यानी पहला आइडियल कंपटीशन, पहला जो है टर्म ये फॉलो ना हो, और दूसरा टर्म क्या है, इफ वन ऑफ एनी कंपटीटर्स आर सुपीरियर वाइल अदर इज इन्फीरियर, यानी कि दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव ना हो, एक डोमिनेंट हो जाए एक रिसेसिव हो जाए, यानी कि एक सुपीरियर हो जाए और एक इन्फीरियर हो जाए, दोनों अलग अलग स्पीसीज से आए या दोनों सेम स्पीसीज से आए, दोनों या तो पावरफुल हो या दोनों जो है पावरफुल ना हो, वीक हो। लेकिन यहाँ कंडीशन बदल दिया, पलट दिया कि क्या होगा कंडीशन में, कि रिसोर्स जो है लिमिटेड ना हो और साथ साथ जो है ये लिमिटेड अमाउंट में ना हो, ठीक है। ये रिसोर्स जो है लिमिटेड अमाउंट में हो, यहाँ पे अनलिमिटेड दिया ना, अबंडेंट, यानी रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में हो, कम हो, लेस हो, और सीधी सीधी बात है कि एक सुपीरियर हो और एक इन्फीरियर हो, यानी एक पावरफुल हो स्ट्रांग हो और दूसरा जो है वो वीक हो। तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, नीचे मैंने आंसर भी लिख दिया। देखो ये सब आइडियल मैंने कॉन्सेप्ट ले करके आपके लिए आया, ताकि आप हेडिंग लिख लीजिए, इसका जो है कंक्लूजन लिख लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इफ़ द रिसोर्स आर लिमिटेड एंड वन ऑफ द कंपटीटर्स आर डोमिनेट, देन द inferior वन गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज गासेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, गासेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, गासेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस में स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। ऊपर बताया गया था कि म्यूचुअल बिहेवियर को एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस होगा। मिलियंस ऑफ द टाइम्स तक कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए तो वो को एग्जिस्टेंस बोला जाता है, जिसको को इवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे पलट गया, क्या, दिस में स्टेट्स दैट इफ द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, यानी दोनों एक ही चीज़ को खा रहे हो, एक कॉर्निवर्स हो तो दूसरा भी कॉर्निवर्स हो, एक हर्बीवर्स हो तो दूसरा भी हर्बीवर्स हो, तो क्या होगा, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडिफाइनाइटली, यानी वो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एंड द कंपेटिटिवली इन्फीरियर वन विल एलिमिनेट इवेंचुअली, यानी कि जो इन्फीरियर स्पीसीज रहेगा वो वहाँ से भाग जाएगा। ये कंडीशन बोलते हैं गासेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप गासेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इसको ये डिफाइन कर देंगे सारा पॉइंट, और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एज वी नो दैट इन अ पर्टिकुलर लिविंग एरिया वन इज इन्फीरियर वाइल अदर इज सुपीरियर। देखो डोमिनेंट रिसेसिव का टर्म यहाँ पे यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव जो है एक स्पीसीज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर टाल है डोमिनेंट पी में तो हो सकता है कि पी के दूसरे स्पीसीज में रिसेसिव जो है ड्वार्फ हो, लेकिन अगर मैंगो के लिए टाल है या पी के लिए ड्वार्फ है तो ये डोमिनेंट रिसेसिव थोड़ा ना होगा। ये अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस का क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम एक नया क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यानी कि एक पावरफुल है, यानी अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाले दो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए हम सुपीरियर इन्फीरियर यूज करते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव यूज नहीं करते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले सुपीरियर इन्फीरियर स्पीसीज को बोलते हैं। लिसन, so in a particular geographical area if the two organisms both suppose that carnivores depend on the same feeding habitats, then one is inferior while other is superior, then what happen after some time, the inferior one
get eliminated from the system, and either it get extinct or it get choose the elsewhere, it choose the food habitats or the food ecosystem in elsewhere other than the दिस पार्ट। सपोज दैट ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, यहाँ सुपीरियर है, यहाँ सुपीरियर नहीं है, तो ये भाग के सुपीरियर इन्फीरियर वाला यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइना कार्निवर्स है, लायन कार्निवर्स है, ठीक है। तो हाइना और लायन एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। हाइना को किसी दूसरे फूड रिसोर्स की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो ये है गासेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ गासेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन ऑफ एबिंगडन टर्टवाइज फ्रॉम गैलापेगोस आइसलैंड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं ना फिगर का, ये कछुए का, ये है एबिंगडन टर्टवाइस, इसको बोलते हैं एबिंगडन टर्टवाइस। और ये स्पेशल इंडिविजुअल है, एक तरह का आइलैंड है, उस आइलैंड को बोलते हैं गैलापेगोस। अगर आप चैप्टर 7 पढ़ते, इवोल्यूशन पोर्शन अगर पढ़ते ना, तो ये गैलापेगोस आइलैंड के बारे में डिटेल पढ़ाते। लेकिन नीट के एग्ज़ाम में इवोल्यूशन चैप्टर, आप जब नीट का एग्ज़ाम देंगे तो इवोल्यूशन चैप्टर आएगा, बट ये पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इस साल एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। गैलापेगोस आइलैंड के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये वही आइलैंड था जहाँ पे चार्ल्स डार्विन घूमने गए थे और अपने जर्नी में उन्होंने लिखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर तो हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। तो ये उनका एक सेलेक्टेड आइलैंड था, गैलापेगोस आइलैंड पे वो घूमने गए थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये डार्विन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे एबिंगडन जो टर्टवाइस है गैलापेगोस आइलैंड का एक स्पेशल कीचर है जो ग्रास लैंड एरिया में घास खाने के पर्पज़ से, ये घास है, घास खाने के पर्पज़ से वो घूमता रहता, अपनी साइज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सेल्फिश इंसान क्या किया कि घास को देख करके वहाँ पे ग्रास लैंड का एडवांटेज लेने के लिए गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई गोट से उसको एडवांटेज मिलना है, टर्टल से उसको एडवांटेज नहीं मिलना है, तो गोट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी बकरियों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब बकरियों को इंट्रोड्यूस कर दिया तो बकरियों का फीडिंग हैबिटेट ग्रास था और एबिंगडन टर्टवाइस का भी फीडिंग हैबिटेट ग्रास था। तो हुआ क्या, दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, कंपटीशन। और जब कंपटीशन शुरू हो गया तो जो गोट थे वो गोट मैमल्स होते हैं और मैमल्स हमेशा रेप्टाइल्स पे सुपीरियर रहे हैं शुरू से ही। तो हुआ क्या कि गोट वहाँ पे सुपीरियर साबित हुआ और जो एबिंगडन टर्टवाइस था वो इन्फीरियर साबित हुआ। धीरे धीरे इसकी रेसेस जो है स्टार्वेशन की वजह से और कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो गई। कौन एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गया, गैलापेगोस आइलैंड से एबिंगडन टर्टवाइस जो है एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गया। दिस इज द बेटर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे। एज वी नो दैट गैलापेगोस इज अ आइलैंड विच इज स्पेसिफिक फ्रॉम द स्पेशल काइंड्स ऑफ टर्टल known as the abingdon. That tortoise is the dominant species for that Galapagos, but later due to selfishness, due to self marketing or the self purpose, human being introduced the goat in that particular Galapagos island. Later goat, as we know, that dominant over the turtle. So due to the same feeding habitats, the species of turtles become endangered and it is left from the from the Galapagos island and become aquatic, and some become extinct from the land or grassland area. This is the example of Gauss's exclusion principle. इसमें से भागा कौन, एबिंगडन टर्टवाइस। सेकेंड एग्जाम्पल Connell's elegant field experiment on superior barnacle versus inferior barnacles. barnacles क्या होते हैं भाई, barnacles एक जो है सी जो समुद्र में पाए जाने वाले समुद्र में जो कोरल रीफ आप पढ़े होंगे, कोरल रीफ पढ़े होंगे, ये स्पेशल तरह के कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरह के स्पीसीज होते हैं, ये दो तरह के स्पीसीज होते हैं, एक बैलेनस होता है और एक कैथामेलस होता है। दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो जो सुपीरियर स्पीसीज है इसमें से वो बैलेनस है। बैलेनस क्या है, सुपीरियर होता है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना,
इसमें से ये देखो, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये सब बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो बड़े बड़े जो बर्नाकल्स दिख रहे हैं, सुपीरियर बर्नाकल्स, वो बैलेनस है। और जो इन्फीरियर हैं, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं दबे हुए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे, वो इन्फीरियर बर्नाकल्स है। तो इन्फीरियर बर्नाकल्स कौन है? कैथामेलस। और सुपीरियर कौन है? बैलेनस। ठीक है, बैलेनस कौन है? बैलेनस सुपीरियर है, और कैथामेलस जो है वो इन्फीरियर है। मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। बैलेनस और कैथामेलस तो याद करना है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कौन जो है सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर। अच्छा, छोटा और बड़ा में, छोटा और बड़ा में ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन डोमिनेट होता है, कौन रिसेसिव होता है। बड़ा हमेशा डोमिनेट करता है, यानी बड़ा हमेशा सुपीरियर होता है छोटे के कंपेयर में। तो सी से छोटा होता है, और सी से मैंने ट्रिक दे दिया यहाँ पे, कैथामेलस। सी से कैथामेलस छोटा होता है। ठीक है, तो कैथामेलस यहाँ पे इन्फीरियर है, और बैलेनस क्या है? सुपीरियर है। तो गॉसेस जो है, कोनेल्स नाम के साइंटिस्ट ने गॉसेस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उसको यहाँ पे एक दूसरे वे में एक्सप्लेन किया। व्हेन द टू बर्नाकल्स, वन इज सुपीरियर एंड अदर इज इन्फीरियर, द सुपीरियर बर्नाकल्स आर बैलेनस एंड द इन्फीरियर बर्नाकल्स आर कैथामेलस, लाइव टुगेदर, देन as you all know both are the barnacles, then both have the same kinds of feeding habitats, then the inferior one after some time get either extinct or get eliminated. That is the better example to explain the gases exclusion principle. So due to this way, or due to the abundant tortoise methods, you can explain the important gases exclusion principle. Gases exclusion principle can explain by the Galapagos Island of abundant tortoise, and second one the barnacles, the superior and inferior barnacles. तो ये तो हो गया एक कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें गॉस ने बताया कि फूड रिसोर्स अगर लिमिट्स है तो सीधी सी बात है, इसमें कोई हिचक नहीं होगा, नो डाउट। दो ऑर्गेनिज्म साथ नहीं रह सकते, उनमें से किसी एक को वहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, पहले तो आप नोट जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान देंगे, बार बार इसको जरूर लिखेंगे। द अबव कंडीशन कॉल्ड कंपटीटिव रिलीज्ड, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर है और एक सुपीरियर है, तो इन्फीरियर वाला भाग खड़ा होगा, यानी इन्फीरियर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इस एलिमिनेशन को बोलते हैं कंपटीटिव रिलीज। तो कैसे कंपटीटिव रिलीज को एक्सप्लेन करेंगे? The inferior one get eliminated from the system due to superior species, the phenomenon is known as competitive release. तो ये competitive release बोलते हैं, यानी कि abundant tortoise भाग गया या फिर inferior barnacles कैथामेलस भाग गया, तो इसको बोलेंगे competitive release। अब आते हैं exception of competitive release and a gaseous competitive exclusion principle। कह रहा है कि competitive रिलीज या गासेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आपको जानना है। लिसन, अभी ऊपर मैंने क्या बताया था? ऊपर बताया था कि अगर दो लिविंग बींग साथ रह रहे हो, ठीक है, दो लिविंग बींग अगर साथ रह रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अगर एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है यानी कि एक सुपीरियर है और दूसरा जो है इन्फीरियर है, एक सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर है, तो इन्फीरियर वन वाले को छोड़ के भागना पड़ेगा। गॉस ने बताया था, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट हुए, कौन? यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक और साइंटिस्ट हुए, मैकआर्थर, लिख दे रहा हूँ, मैकआर्थर। और मैकआर्थर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट, बल्कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कुछ जगह पे जाके विजिट्स किया। ठीक है, और वो देखे कि एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है। इस ट्री में खास बात ये थी कि 5 स्पीसीज एक बर्ड्स की देखी। कौन से बर्ड्स की देखी थी? वार्बलर्स की। किसकी देखी? वार्बलर्स बर्ड्स की 5 स्पीसीज देखी। उस 5 स्पीसीज में कुछ सुपीरियर थे, कुछ इन्फीरियर थे। ठीक है, मैकआर्थर ने क्या देखा? एक बड़े से ट्री पे, एक ही ट्री पे 5 स्पीसीज वार्बलर्स बर्ड्स की है। ये वार्बलर्स क्या है? ये बर्ड्स है। 5 बर्ड्स जो है वार्बलर्स की देखी, और ये भी देखा कि लंबे समय तक उसमें से कोई
एलिमिनेट नहीं हुआ, नहीं ना इन्फीरियर एलिमिनेट हो रहा है, सुपीरियर का तो सवाल ही नहीं, कोई स्पीसीज एलिमिनेट नहीं कर रहा है। और ये भी क्लियर कर लिया कि 5 में से बहुत सारी स्पीसीज सुपीरियर है तो बहुत सारी स्पीसीज इन्फीरियर भी है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं पाया कि 2 वार्बलर स्पीसीज या 5 वार्बलर स्पीसीज एक ट्री पे रह रहे हो और वो एक दूसरे के साथ फूड शेयर कर रहे हो और उसमें से इन्फीरियर वन वाला भाग जाए। तो इस पे के बाद बताया कि मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि अगर 2 स्पीसीज साथ रह रहे हो, एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, यानी एक सुपीरियर हो और एक इन्फीरियर हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि इन्फीरियर वन वाला भागेगा अगर वो फूड पार्टीशनिंग सेम काइंड्स ऑफ फूड पे डिपेंड है। इसको इन टर्म दे दिया क्या, को एग्जिस्टेंस। क्या टर्म दे दिया, को एग्जिस्टेंस। और अगर एक ही फूड आइटम्स पे दोनों डिपेंड और भाग नहीं रहे हैं तो इसको बोला गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये एग्जाम में आता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है और पूछता है। तो गॉसेज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैकआर्थर फाउंड द डिफरेंट 5 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स बर्ड्स, 5 different species of warblers bird, and they can live together without disturbance, without any disturbance. Sometimes resources are limited, yet 2 species live together without disturbing each other, so the coexistence, this called as resource partitioning. I hope आपको गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। उसके एक्सेप्शन एक ही है, क्या एक्सेप्शन है, मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट 5 वार्बलर्स स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पे उन्होंने देखा कि वो 5 एक साथ रह रहे हो और किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, जबकि फूड रिसोर्स एक है। तो एक टर्म दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग और एक और टर्म आता है को एग्जिस्टेंस। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आप अच्छे से कंपटीशन का नोट्स बना लेंगे, ठीक है। कंपटीशन का एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा और टू द पॉइंट्स भी नोट करेंगे और जहां एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी समझेंगे वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द पैरासिटिज्म। थैंक यू।